آپ پلیز خاموشی رکھیے گا. آپ کی کرسیاں سیدھی کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ یس آج کی ٹریننگ کے لیے ریڈی ہیں آپ لوگ؟ یس. اتنا سلو یس بولیں گے کیسے پتا چلے گا آپ بالکل مینٹلی 100% ریڈی ہیں؟ آر یو ریڈی؟ یس. 45 منٹس کے لیے آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھول جائیں. بالکل ذہن خالی کریں. ہم آج بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. ٹائم جو ہے وہ ہم زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ ٹائم آلریڈی بہت کم ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, تو ہم نے ان کے ٹائم کی رسپیکٹ کرنی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. اور اب ہم انوائٹ کرنے جا رہے ہیں ہماری کمپنی کے ایگزیکٹو کراؤن ڈائمنڈ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خانزادہ صاحب کو. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائمنڈ, ایگزیکٹو ڈائمنڈز, اسٹار ایجنٹس, ڈسٹریبیوٹرز اور تمام نئے ساتھیوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا موضوع ہاؤ ٹو اچیو اینی گولز بہت اہم ہے. اس موضوع پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ 1 یا 2 منٹ کی ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو آگے چل کر اس موضوع سے لنک کرے. تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور جیسے جیسے جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس کو تصور میں لائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. تو پلیز آپ سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اس رب کریم کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے ہمیں افضل المخلوق بنایا ہے, سوچنے اور سمجھنے کی مکمل صلاحیتیں دی اور عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک انرجی پرووائڈ کی, چلانے کے لیے دماغ اور دنیا پوری کائنات میں فریلی کام کرنے کے لیے ایک آزادی دی. اس رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے موضوع سے پر ڈسکس کرنے کا موقع دیا جو ہماری زندگی کا ذاتی مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ. شکر. گولز اپنے ذہن میں ایک تصور لائیں اور جو آپ کے گولز بنانا چاہتے ہیں یا سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ری سیٹ کر لیں اور اس کی جو بھی آپ نے شفلنگ کرنی ہے اس کو کر کے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس نے کیا تصور کیا, کیا گولز بنائے ہیں. تو اپنے سے گولز کو سیٹ کر لیجئے. ٹھیک.
आंखें खोल लीजिए। सबने खोल लिए? सबने खोल लिए? गुड। नहीं खोलिए तो वो सोते ही रह जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खानजादा कहते हैं और बहैसियत न्यूरोफिजिशियन गुज़िश्ता 30 सालों से अपनी तिब्बी खिदमत कराची में अंजाम दे रहा हूँ। DXN से गुज़िश्ता 8-10 सालों से वाबस्तगी है और इस वक्त एक्सेप्टिव कराउन डायमंड के पेपर हूँ और ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। जो मौजू आज मैं डिस्कस करने चला हूँ ये मेरे तस्वीर में भी नहीं था, क्योंकि गोल्स पर मैं अपने पेशेंटों को, क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट अक्सर आते हैं और जिंदगी की मकसद की बातें तो मैं बहुत करता था उनको कि आप लोगों का कोई जिंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया है। आज इस मौजू पर इजहार करने का मौका DXN पाकिस्तान ने मुझे दिया और यकीनन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मौजू है, कि इस पर हम खुलकर बात करें और आगे बढ़ते हैं। गोल्स हैं क्या? क्या है गोल? जिसको देखो वो गोल की बात करता है। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हुआ था पिछले हफ्ते इस्लामाबाद, तो एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और घूमते हुए गोल्स पे आ गई, तो वो कहने लगे कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक बच्चा, उससे जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, गोल्स तुम्हारे क्या हैं, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि पापा मैंने तो गेमिंग जोन बनाना है। गेमिंग तो IT से उनका शौक है, जबकि मदर और फादर दोनों मेडिकल से अच्छी फील्ड में बहुत नामवर शख्सियत की औलाद, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने तो स्विमिंग गेम जोन या गेमिंग जोन वो बनाना है। वजह जब जानना चाहिए तो उनका कहना ये था कि मैंने डॉलर्स में कमाना है, रुपयों में नहीं, और गेम्स में डॉलर्स में इनकम आ रही। बताना ये चाह रहा हूँ, शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारा माइंडसेट कुछ चेंज हो गया है और चेंज होता जा रहा है। अगले 10 साल 20 साल बाद हो सकता है मजीद चेंज हो जाए। गोल्स की कोई मखसूस डेफिनेशन अगर कोई आपने से मुझे बताना चाहे, शेयर करना चाहे तो वेलकम, वरना फिर हम इस विकिपीडिया की डेफिनेशन से सहारा लेंगे। कोई है तो गोल्स को एक्सप्लेन करेगा? जी सर। Goal is which we have idea, plans, vision, targets, time period. गुड। और कोई? जी। मेरा गोल्स है कि मैंने बनाया अपना गोल्स कि मैंने डायमंड बनना है और DXN में कामयाब होना है और अपना घर करना है। गोल्स की कोई डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये ठीक है, आपने अपना गोल शेयर किया हमसे कि क्या होता है ये गोल? जी सर। और कोई? जब हम गोल की बात कर रहे हैं तो गोया हमने कुछ ऐसा ख्वाब देखा है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, और गोल अगर आपने अचीव करना है तो एक मखसूस टाइम भी इसके साथ बाउंड कीजिए, फिर आपका वो गोल बन जाएगा, वो आपका मकसद बन जाएगा। जिंदगी का मकसद बना लेना एक गोल है और उसके लिए जद्दोजहद करना उसके लिए एक पाथवे है। सिर्फ ख्वाबों को देखना, बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और बेशुमार ख्वाब तरह तरह के वो देखते हैं, लेकिन उनके जिस्म में अल्लाह ताला ने जो एनर्जी दी है उसको वो सोकर जाया करते हैं या ख्वाबों की दुनिया में रहकर जाया करते हैं, एक्शन में नहीं आते। जो लोग एक्शन में नहीं आते वो गोल्स कभी पाते नहीं है। तो गोल्स क्या हुआ कि वो चीज, वो टारगेट, वो एम जो आपने डिसाइड किया अपनी लाइफ के लिए और एक मखसूस पीरियड में हासिल करने के लिए, और वो उस गोल का कोई ना कोई मकसद हो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए या माशरे को बदलने के लिए, वो गोल कहलाता है।
एग्री करेंगे आप इसमें? ठीक है। अब आप लोगों ने जो हमने एक छोटी सी एक्टिविटीज की थी उसमें यकीनन हर शख्स ने मुख्तलिफ गोल्स बनाए हुए होंगे। कोई शेयर करेगा कि किसका क्या है ताकि हम उसी तरीके से लेकर इस आज की प्रेजेंटेशन को चले। आप में से कोई, आपके क्या गोल है? मैंने भी अपना गोल सेट किया कि मुझे इस साल PhD होना है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अच्छी अर्निंग आ सकती है। आप में से कोई? मोसिफ, सर विदिन 3 months डायमंड क्लोज करना है। यहाँ से कोई? चले, आप लोगों ने सबने, चूंकि हम ऐसे माहौल से वाबस्ता हैं जहां हमें मार्केटिंग की बातें करनी है, तो शायद हमने मार्केटिंग को ही फोकस किया। मैंने पहले अपनी हेडिंग में दिया था एर्निंग गोल्स। तो जरूरी नहीं है कि कोई जिंदगी में एक ही गोल हो, मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, आप यानी कि राइटर के हिसाब से भी हो सकते हैं, आपकी डिफरेंट गोल्स आप सेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। मखसूस गोल होने चाहिए, महदूद गोल होने चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी उन्हीं चीजों पर लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्यों हम गोल सेट करते हैं? सवाल है, क्यों हम गोल सेट करते हैं? अगर हमने अपने आप को कोई टारगेट नहीं दिया, अगर हमने अपने आप को कोई मकसद नहीं दिया, अगर हमने उसके लिए कोई रास्ता तय नहीं किया, उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए, तो फिर मुश्किलात हैं, फिर नामुमकिनात हैं। ठीक है, तो गोल इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि आप एक डायरेक्शन में काम कर सकें, ताकि अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करके उस पर लगा सकें। और गोल्स इस तरह के होने चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई मकसद निकले। ठीक है, चाहे वो आपकी इस DXN से वाबस्तगी से रिलेटेड हो या जिंदगी के और किसी शोबे से, लेकिन उसका कोई मकसद हो। ये बात समझ में आई? कुछ किस किस के समझ में ये स्लाइड आ रही है? अभी मैंने ये फिर रिपीट कर देता हूं, वही बात को एक्सप्लेन किया है कि गोल सेट करने का मकसद ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, आप उस डायरेक्शन पे अपने गोल की तरफ एक सारी एनर्जी फोकस करके आप लग जाए। क्यों हम नाकाम होते हैं? कभी आपने सोचा क्यों? डायरेक्शन नहीं होती, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, डिफरेंट गोल्स दिमाग में चल रहे होते हैं, और किसी ने मोटिवेट कर दिया, थोड़ी सी मोटिवेशन आई, आपका जाती गोल था ही नहीं, उसने आप पे इन्फ्लुएंस किया, आप मोटिवेट हो गए, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा, गैप आया, आपके गोल्स का गायब हो गया। तो आपके अपने गोल्स होने चाहिए, जिंदगी का मकसद आपका होना चाहिए। मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में कहता हूं कि पहले खुद को पहचानो और उसके बाद फिर उसी सारी सलाहियतों को एक जगह रखकर फिर अपने लिए लाहे अमल तय करो, और फिर उसके लिए जद्दोजहद करें, फिर देखें कि आपको रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। यकीनन मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर वर्क ही नहीं कर रहे, खुद को पहचान ही नहीं रहे, और किसी के कहने पर थोड़ा सा वक्ती से मोटिवेट हो भी गए, तो यही रिजल्ट आने हैं जो हम गुज़िश्ता कई अरसे से देख रहे हैं। पिछली सालगिरह में हमारे सलीम साहब ने पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था उसको एनालाइज किया कि इतनी पॉपुलेशन है, इतना टाइम पीरियड गुजर गया है, इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। यही बात की थी खालिद ने,
क्यों? ये तो हकीकत है। शायद आज तक हमने गोल अचीविंग पर बहुत सारी प्रेजेंटेशन ली होंगी, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की, और कोशिश ना करने की वजह से आज हम वो प्रोग्रेस दे नहीं पा रहे। टाइम भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे जो हमें मिलने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? आगे बढ़ते हैं। ये वो स्टेप्स हैं, अगर ये हम इन पर फोकस कर लें तो यकीनन हमें कामयाबी मिल सकती है। नंबर 1, जो अभी हमने एक्टिविटीज की, आप लोगों ने पहले भी अपने गोल सेट किए होंगे। आज मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि अपने लिए टाइम निकाल कर रीसेट करें, ठीक है? और आपने किया। उन्हें आगे उन्हीं गोल्स को आज जाकर अपनी एक डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें। एक डायरी आज परचेज करें, अगर है गुड, नहीं है तो आज से ये हैबिट बना लें कि उस डायरी के पहले पेज पर आपके गोल्स क्लियर लिखे हुए हो, और उसके बाद लिखने के बाद आपने क्या करना है कि प्लान करना है लर्निंग गोल्स पर। लर्निंग गोल्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप में से किसी शख्स ने सोचा कि मैंने अगले, चले डीएक्शन की किसी ने यहाँ पे किया था कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं। फर्ज करें वो स्टार डायमंड था, स्टार एजेंट था, स्टार डायमंड बनना चाहते, वो लिखेंगे अगले, यानी मेरा गोल है कि अगले 3 मंथ में मुझे स्टार डायमंड बनना है, लिखा हुआ। उसके नीचे एक ट्रेनर भी बनना है, उसके नीचे मुझे एक डाउनलाइन अपनी यानी स्टेबल डाउनलाइन, जो मजबूत डाउनलाइन हो, वो तैयार करनी है। ये 3 गोल्स उसने बनाए हैं अगले 3 माह के लिए। पहला गोल स्टार एजेंट से एक स्टेप आगे जाना है, अगर डायमंड है तो उससे स्टेप आगे जाना है। सेकंड क्या बनाया था? नहीं, ट्रेनर बनना है। फर्ज कर रहे थे, सपोज कर रहे हैं कि ट्रेनर बनना है, ट्रेनिंग देनी है। और थर्ड क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन लाइन्स बनानी है, अपनी 1 या 2 3 जितनी भी वो आप अपनी कैपेसिटी को सामने रख कर ये आज उस डायरी पर मेंशन कर लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। अब हमें आपने ये ख्वाब तो देख लिया कि डायमंड बनना है, फिजिबल कैसे बनाना है? फिजिबल बनाने के लिए यकीनन हमें एक नॉलेज चाहिए, गोल नॉलेज कहते हैं हम उसको, कि डायमंड की रिक्वायरमेंट ये है कि तकरीबन 27,000 पीवीज 6 लाइनों में, ठीक है? तो आपको 6 लाइनें ऐसी तैयार करनी है जिसमें 4,500 गालिबन, ठीक है? हर लाइन में इन 3 महीनों में बनाने हैं। आपके सोचने से क्या ये 27,000 पीवी बन सकते हैं 3 महीने? नहीं। क्या करना होगा? निकलना होगा, एक्शन में आना होगा, ठीक है? लोगों को ये मैसेज पहुंचाना होगा। अब मैसेज पहुंचाने के लिए आपने अपने पहले उन्हीं 6 लोगों को तैयार करें जिन्हें स्टार एजेंट बनाना है। उन 6 लाइनों पर वर्क करें, उन्हें सिखाएं और इस काम को उनसे डुप्लीकेट करवाएं। जब वो डुप्लीकेशन होगी तो आप 3 महीने क्या 2 महीने में भी स्टार एजेंट बन सकते हैं। आपका जो एक सेकंड नंबर पे हमने टारगेट सेट किया था, अगर आपने वो सिखाने वाला अमल इसमें किया तो वो तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। आप जब 6 बंदों को ट्रेन कर रहे होंगे तो 46 बंदों को भी ट्रेन करने की ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो वो टारगेट के लिए सिर्फ नॉलेज लेनी होगी, और नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? आपको ट्रेनिंग से मिलेगी, हमारे सोर्सेज है। उसी डायरी में वो सोर्सेज को लिखिए। कौन से जरा है? आपका फेसबुक है,
یعنی آج کا جو سوشل میڈیا ہم جیسے کہتے ہیں، سینئرز ہیں، لیڈرز ہیں، لٹریچر ہے، اور جو بھی ذرائع بن رہے ہیں اس کو لسٹڈ کر لیجیے اور اس کے بعد اس پر محنت کیجیے. لیکن ٹائم باؤنڈنگ بھی اس ساری ٹریننگ کے لیے بھی، ایک تو گولز کی ٹائم بائنڈنگ ہے، وہ آگے ہم بات کریں گے. یہ اس جو ہم نے آج کے لیے ان 3 گولز کو سپوز کیا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی بھی ایک ٹائمنگ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ 1 گھنٹہ میں نے لرننگ کرنی ہے، 1 گھنٹہ میں نے فیلڈ میں نکلنا ہے، 1 گھنٹہ میں نے اپنے سینئرز کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. فار ایگزامپل 3 گھنٹے آپ نے سرو کرنا ہے. اگر 3 گھنٹے نہیں ہے تو کم کر لیجیے، اگر زیادہ ہے تو اور زیادہ بڑھا دیجیے. لیکن اس ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو باقاعدہ فیزیبل بنائیں، اپلیکیبل بنائیں، تاکہ آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور لوگوں میں جا سکیں. پھر سلیم صاحب کا یہ شکوہ یقیناً اگلے سال ہو سکتا ہے ختم ہو جائے اور آپ کے لیے وہ تالیاں بج رہی ہوں پوری دنیا میں کہ پاکستان نے بہت کم وقت میں بہت کچھ کر کے دکھایا. تو آج ایک کمٹمنٹ اپنے ساتھ کر لیجئے کہ آج کے بعد صرف خواب نہیں دیکھنے، کام کرنا ہے، فیلڈ میں نکلنا ہے، گلیوں میں جانا ہے، محلے کی خواتین کا جھمکٹا جمع کرنا ہے، ان کے ساتھ گیدرنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ نالج شیئر کرنا ہے، ڈیکشن شیئر کرنا ہے. آپ پھر دیکھیے یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ پلان ہم نے بنا لیا تھا، پلاننگ ہم نے اس ڈائری پر لکھ لی ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ کریں چھوٹے چھوٹے کام سے. ان 6 لوگوں کو پہلے بلانا ہے، اس ٹیبل پہ بٹھانا ہے، ڈی ایکشن کی کافی سرو کرنی ہے، ان کی پسند کے مطابق بے شمار چوائس ہے آپ کے پاس. اور اس کے بعد انہیں ٹارگٹ دینا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اپنے کسی فرینڈ کو لے کر آئے، ڈی ایکشن کی کافی میری طرف سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ جب وہ 6 افراد 6 لوگوں کو لے کر آئیں گے تو اب اسٹرینتھ کتنی ہو گئی؟ 12. 6 ایک لا رہے ہیں تو 12، اور انہیں بھی 12 کو اگلے نیکسٹ ہر ویک کا یہ رکھ لیں تو پھر ایک اور، تو آپ کتنی ہو گئی؟ اور 24 کو جب دو گے تو آگے کی بات نہیں کر رہا، اتنے بھی آپ کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت آسان سا کر دیا ہے. اسٹارٹ کریں چھوٹے ٹارگیٹ سے، بالکل چھوٹے سے، لیکن طے کریں. ہم سوچتے بہت ہیں، کرتے نہیں ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ سننی پڑتی ہے باہر سے بھی، یار 22 کروڑ آبادی، 15 سال ہونے کو آگے، 16 سال گرا، اور رزلٹ انکم، تو ہم اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وسیع الزمان صاحب بڑے اچھے ہوئے ہیں اوپر، جب ایک اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ 10-20-30 ہزار روپے کمانا چاہتے ہیں تو کیوں ڈی ایکشن سے وابستہ ہے؟ میں وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے، تو میں بھی یہی بات ریپیٹ کروں گا، پھر کیوں وابستہ ہے؟ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کمانے کی، کام کرنے کی، خدمت کرنے کی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آخری ہے، یہ میں شروع کی پہلی، اگر کسی کو اگر میری پریزنٹیشن یاد ہوگی تو، اور میں نے اپنی کامیابی کے راز اگر بتائے ہوں گے تو یہ ایک لفظ تھا سر، مستقل مزاج. جب میں نے ڈی ایکشن سے رزلٹ لے لیے تھے اور میں مطمئن ہو گیا تھا تو اس کے بعد دائیں دیکھا نہ بائیں اور آگے بڑھتا گیا اور آپ کے سامنے کھڑا. صرف آپ اس ایک لفظ کو پکڑ رہے کہ کام ڈیلی کی بنیاد پہ کرنا ہے. آپ بلیو کریں، میں 2 بجے کلینک سے فارغ ہو کے آؤں، مجھے ملٹیپل ٹائم اپنے اویس بھائی نے کہا کہ سر میں خود بھر لیا کروں گا فارم، کوئی بھی ایسا ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم صرف NICs لے لیتے ہیں، ان سے سائن کروا لیتے ہیں، تو اس کو فل کرنے کے لیے کیونکہ ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. لیکن میری کوشش ہوتی کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو فل کروں تاکہ میری انوالومنٹ برابر رہے اور روزانہ کی بنیاد پر رہے. تو کوشش کیجئے کہ اس
काम के साथ मुस्तकिल मिजाजी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं आज किसी ने आपको फिर मोटिवेट किया, एक हफ्ता इसका असर रहा, अगले हफ्ते फिर डाउन, फिर उससे अगले पता चला कि गैप आ गया और जो मेहनत आपने 2 हफ्ते की थी वो भी ज़ाया कर दी। तो मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। ये 5 स्टेप से अगर आपने आज ये तय कर लिए, वाकई आपने डायरी बनाई, वाकई आपने उसको डायरी पर लिख लिया और रोज की बुनियाद पर उसको चेक करना शुरू किया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी नोट करें, कोई बैरियर आ रहा है वो भी बताएं। अगले 3 माह बाद, आज आप 3 माह का अपने टारगेट फोकस कर लें कोई भी, और इसी तरह से हम बैठेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट मिला। कर रहे हैं आप अपने आप से कमिटमेंट, मुझसे नहीं, सब मेरा हाथ उठा के बताएं सब। गुड। अब आते हैं हम, ये सारी थोड़ी सी हमने एक्सप्लेन किया था केस। सिलेक्ट द गोल, क्लियर गोल। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, क्योंकि दिमाग आज के दौर में वैसे ही जो साइंस कहती है कि तकरीबन 60,000 आइडियाज या सोच थॉट्स हमारे दिमाग में ना चाहते हुए भी आती और जाती रहती है, 60,000। और जब से सोशल मीडिया आया है अब इसकी तादाद न जाने कितनी हो गई। अगर आपका गोल, आपने सोचा मुझे स्टार एजेंट बनना है या स्टार डायमंड बनना है या डबल डायमंड बनना है, ट्रिपल डायमंड बनना है, जो भी एक्सवाइजेड, या क्राउन एम्बेसडर बनना है, एक दफा सोचा 60,000 ख्याल में वो तो पता नहीं कहाँ निकाल दिया जाएगा। तो रोज की बुनियाद पर इसको जब सोचेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और उसके लिए जब आप स्ट्रगल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं एनी गोल्स की, कोई भी, ये हर आपके मकसद पर जो भी आपने सोचा है उस पर अप्लाई हो सकता है और वो गोल इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए। आपका माइंड एक तरफ हो कि मुझे ये काम करने हैं अगले 4 माह में, अगले 6 माह में, 1 साल में, 10 साल में, जो भी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की है या इंटरमीडिएट की, जो भी आपने प्लानिंग की है वो क्लियर होनी चाहिए। लिखने वाली बात हमने अभी कर ली, बहुत तफसील से की है, लिहाजा इस पर भी हमने बड़ी डिटेल से कि आपने जो भी सोचा है अब वो ठान ले। बस वो जो एक शेर हमने, ये हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो ठान ले आज के बस करना है, वही बात उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे गोल्स बनाए, टारगेट बनाए, जो भी गोल है उसके लिए भी, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दें और उस पर डट जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, बस आज इतना ही समझा रहा था। कोई सवालात अगर है? कोई सवाल नहीं? चले फिर मैं आपसे शुरू करूंगा कुछ सवालात। क्या वजह है कि हमें कामयाबी अभी तक वो नहीं मिली जो हमने सोची थी? कौन बताएगा? सर, क्योंकि हमारे गोल सेट नहीं होता और हम कुछ प्लान नहीं कर रहे होते, माइंड सेट नहीं होता, और उसके लिए हम स्ट्रगल भी नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब आप बताएं, क्या वजह है कि जो हमने गोल सेट किए थे, क्योंकि गोल्स तो हमने पहले भी लिए, क्योंकि चैलेंज लिए अपने लिए, उसमें कामयाबी हमें नहीं हासिल हुई। सर, हम हर इंसान की सुनते हैं, जो कामयाब इंसान है उसकी ही सुनते हैं। अगर उसको हम फॉलो कर लें वो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। दिलफराज सर, टाइम हम लोग देते नहीं है और फिर बाद में शिकवे करते रहते हैं। आप में से फोकस सही नहीं था। आप
बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, just बैठे रहते हैं। सर आप भी सर अल्लामा इकबाल ने फरमाया तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए हुकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब सामने से मुखालफत आती है, मुखालिफ तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जब वो हुकाब अपना सर नीचे कर लेता है तो फिर वो गिर जाता है ज़मीन पे। अगर उसी बाद मुखालिफ पे अगर वो अपना रुख चेंज कर दे, अपना सर ऊंचा कर ले, तो वो हवा उसको और ऊपर ले आती है। तो मुखालफत को जो है ना बर्दाश्त करना और उस पर जम जाना अपनी जगह, अपने उस पर टारगेट पे। फरहाद अभी तक अपनी खुद ही को नहीं पहचान सके कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक जज्बा, एक जुनून, एक जोश अपने अंदर पैदा, कामयाबी के लिए पैदा करना जरूरी होता है। वो पागलपन अभी तक अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए। उमेर हम अपनी डायरी मेंटेन नहीं करते, डेली गोल सेट नहीं करते हैं, उस पर रिवाइज करें, टाइम दें, इंशाल्लाह। मोसेस सर कंफर्ट जोन में चले जाना। गुड। हर एक ने देखिए बहुत हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया और यही चीजें हैं जिसने हमें आज पीछे रखा हुआ है। बाद लोगों ने बड़े जज्बाती होकर गोल सेट किए, फिर वही कंफर्ट जोन में चले गए। कुछ लोगों ने लर्निंग गोल्स पे काम ही नहीं किया कि फॉर एग्जांपल एक शख्स ने सोच लिया कि मैंने 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना है और इसी से कमाना है, लेकिन क्या उसने वाकई ही इतनी मेहनत की? खुद से सवाल करें। जब नहीं की तो किसको मायूस किया और अपने डाउनलाइन या जो लोग उससे वाबस्ता थे। तो जो भी चीज आप जो चैलेंज या जो भी गोल बना रहे हैं